Welcome back, students. Today we are in exercise 14.1, and I hope three questions we have completed in earlier videos. So, moving on to question number 4. What we are studying in chapter number 14, our main topic is finding area of a trapezium. The formula to find out the area of trapezium is equal to 1 upon 2 multiply sum of the parallel sides into height. Right? So in question number 4, there is a trapezium whose parallel sides are 10 and 22.3 centimeter. So better to draw the diagram first. Draw because it is a trapezium. So draw a trapezium and then name it. Say it is ABCD and now mention the dimensions given to you in the question. Parallel sides are 10 and 22.3. Clearly ये छोटी है DC, AB is longer than DC, तो DC को एज्यूम कर लीजिए 10 सेंटीमीटर और जो लॉन्गर साइड है उसको एज्यूम कर लीजिए 22.3 सेंटीमीटर. Distance between the parallel sides is 3.7. This is 3.7 सेंटीमीटर. ये पॉइंट तो हमें पता है D, ये नहीं पता, इसको एज्यूम कर लीजिए E पॉइंट. Then we have a rhombus. Okay, one rhombus we have. Rhombus in which all sides are equal and opposite sides are also parallel. Diagonals are given. Say P, Q, R, S is a rhombus given to you. Diagonals means PR and QS. Here PR is given to you, QS is given to you. One is 41.8 centimeter and another one is 0.03 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter, so it will become 3 centimeter. When we will multiply it by 100, so it will become 3 centimeter. QS. Find which figure has greater area and by how much. किस फिगर का एरिया ग्रेटर होगा और कितना होगा, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1 upon 2 multiply sum of the parallel sides 10 plus 22.3 into height 3.7. सॉल्व कीजिए. 32.3 multiply 3.7. Simplify. And here, what is the formula to find the area of a rhombus? Area of a rhombus is equal to 1 by 2 multiply diagonal 1 into diagonal 2. One diagonal is PR, another diagonal is QS. Replace the values. 1 upon 2 multiply PR is 41.8 into QS is 3. Simplify and thereafter compare the areas of the two figures and then confirm area of which figure is greater and by how much. Do it. So after simplification, we are getting area of ABCD is equal to 59.755 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे कैलकुलेट किया? पहले हमने 2 से 32.3 पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की 32.3 और 3.7 की मल्टीप्लाई करके आया है 119.51 और फिर 119.51 को डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से डिवाइड किया 59.755. Got it? Thereafter we have calculated area of rhombus. पहले हमने क्या किया यहाँ पर 2 से पहले 41.8 को डिवाइड किया
डिवाइड करने के बाद हमें मिला 20.9। 20.9 कैसे आया? 2 से 41.8 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 62.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ विच फिगर इज ग्रेटर, इट इज 62 एंड दिस इज 59। क्लियरली एरिया ऑफ rhombus इज ग्रेटर, क्लियरली area of rhombus is greater, आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच, कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज्यादा एरिया है। तो कैसे पता चलेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। सो इट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड अमाउंट of area is equal to 62.7 centimeter square minus 59.755 centimeter square, and after calculation it is equal to 2.945 centimeter square. This is the final answer of the given question. Move on to the next question. Now read next question. 5. Area of quadrilateral ABCD is we are on 5 ना, 20 centimeter square and perpendiculars on BD from opposite vertices are this and this. Find length of BD. एक quadrilateral है simple, अभी आपको कोई trapezium given नहीं है, so draw a quadrilateral, a simple quadrilateral हमने ड्रॉ किया है ABCD. It is a simple quadrilateral, area is 20 centimeter square. Given that area of ABCD is equal to 20 centimeter square, और क्या गिवन है? परपेंडिकुलर ऑन BD, BD के ऊपर परपेंडिकुलर, तो BD को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, और अब BD पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। कहां से? अपोजिट वर्टिसेस। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लीजिए ये पॉइंट P क्यू है, ठीक है। तो AP इज परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BD एंड CQ इज परपेंडिकुलर ऑन BD, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। आगे कह रहा है एक परपेंडिकुलर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एक परपेंडिकुलर की लेंथ 1.5। से दिस इज 1 सेंटीमीटर, से दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। BD लेंथ, डायगोनल BD हमें फाइंड करना है। तो जब हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक डायगोनल BD ज्वाइन किया था, तो BD को ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल BCD और लोअर ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल BAD। और अब हम सेपरेटली दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर देंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे तो एरिया इक्वल हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। We will get an equation and after simplifying that equation we will get the value of BD। तो स्टार्ट करते हैं अपर ट्राइंगल से। So area of triangle BCD, एक basic formula to calculate the area of a triangle is equal to 1/2 into base into perpendicular। तो 1/2 इंटू बेस, बेस तो है BD और परपेंडिकुलर कौन सा ट्राइंगल है? BCD। तो BCD का जो परपेंडिकुलर है वो है CQ। वैल्यू पुट करो, 1/2 इंटू BD इंटू 1
तो एरिया आ जाएगा BD अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया ट्राइंगल BCD, अपर ट्राइंगल का एरिया। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगल, ट्राइंगल BAD। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। नाउ राइट डाउन द डायमेंशंस, 1/2 इंटू बेस अगेन BD होगा और परपेंडिकुलर होगा AP। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू BD तो वही रहेगी वैल्यू BD। AP कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरियाज आ चुके हैं। गिवन दैट टोटल एरिया, गिवन दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो आपको गिवन है 20, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा कैसे, वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को प्लस करके आएगा 20। दोनों के एरियाज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट का एरिया है BD अपॉन 2 प्लस सेकेंड का एरिया है 1.5 इंटू BD अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 20। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा तो ये बन जाएगा BD प्लस 1.5 BD अपॉन 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 इंटू 2 40, 1 प्लस 1.5 इट विल बिकम 2.5, 2.5 BD इज इक्वल टू 40, 2.5 BD is equal to 40. Simple equation calculation is going on. From here what will you get? यहां से आपको मिल जाएगी वैल्यू BD is equal to 40 अपॉन 2.5, क्योंकि 2.5 और BD के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो राइट में ट्रांसपोज होकर डिवाइड में आ जाएगा। पॉइंट रिमूव किया, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी न्यूमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट डिनोमिनेटर से रिमूव किया है तो न्यूमिनेटर में एक जीरो आ जाएगी एक्स्ट्रा। कर दीजिए डिवाइड 5 से, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 अगेन, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 6 जा 30। तो BD is equal to 16 centimeter answer. We have to find the length of the BD and therefore it is equal to 16 centimeter. Moving on to next question now. In question number 6, a window pane is in the shape of a regular octagon. Diagram is given. Find the cost of polishing the window pane at 2.50 per meter square. ठीक है, तो first we will draw the diagram as usual. कोई भी क्वेश्चन से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ। चलिए, दिस इज 13 मीटर, इट इज 7 मीटर एंड द हाइट इज गिवन एज 5 मीटर। करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोस्ट फाइंड करनी है पॉलिशिंग की। सबसे पहले हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज अ रेगुलर ऑक्टागन बच्चों, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी ये साइड 7 है। अगर ये साइड 7 है तो सबकी सब साइड 7 मीटर हो जाएंगी। ओके, अब सबकी सब साइड 7 मीटर हो गई तो मुझे ये पैरेलल साइड पता चल गई 7 और 13 और हाइट पता चल गई। जो ऊपर ट्रेपेजियम बन रहा है नीचे भी वही ट्रेपेजियम बनेगा। जो इसका एरिया फाइंड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया भी आ जाएगा। बीच में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया पता ही है, लेंथ इनटू विड्थ, तीनों को प्लस कर देंगे। नेम दे दो A B C
D, E, F, G, H और यहाँ लिख दो J। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम A, B, C, H, A, B, C, H. It is equal to 1 by 2 sum of the parallel sides 7 plus 13 into height 5. 7 plus 13 यहाँ से आया, AB 7 है और CH 13 है. It is given to you in the question. Calculate it. 1 upon 2 multiply, it is 20 into 5. कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 0. 10 into 5 it is 50 मीटर स्क्वायर, राइट। अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH 50 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF भी 50 मीटर स्क्वायर होगा, बट वी हैव टू मेंशन, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF it is also equal to 50 meter square. In between we have a rectangle. Find the area of rectangle. So area of rectangle HCDG will be equal to length into width. अब लेंथ और विड्थ कितनी है, 13 और 7, 13 into 7, 7 here 21, 91 मीटर स्क्वायर, 37 जो 91 मीटर स्क्वायर ही होता है. We have to find the area of the octagon. So area of the octagon is equal to, so area of given octagon is equal to area of first trapezium plus area of second trapezium plus area of rectangle. It is equal to 910 मीटर स्क्वायर. 100 आएगा, 191 191 मीटर स्क्वायर. 50 plus 50 100, 91 191 मीटर स्क्वायर. But it is not the final answer. Given that area of polishing 1 meter square, given cost of polishing 1 meter square area is equal to rupees 2.50. 2.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करना है, 2.5 रुपए लगते हैं. और हमें टोटल कितने मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करना है, 191. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 191 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 191 इंटू 2.50. मल्टीप्लाई करते हैं 191 की 250 से, 0 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 6 7 8 9, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 0 5 7 7 4 4 7 7 5 0. 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा. दिस विल बी योर फाइनल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द एंटायर ऑक्टागन. So the final cost of polishing the entire octagon is 477.50 rupees. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day.